Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum bachcho. As you all know that we are discussing periodicity of properties. Today we will discuss two of the periodic properties, ionization energy and electron affinity. In the previous lesson you have discussed about what is periodicity, and two of the periodic properties have been discussed, and that were atomic size and shielding effect. So what have you studied about periodicity? Periodicity refers to trends or recurring variations in elements properties with increasing atomic number. इसका मतलब है कि आप लोगों ने जैसे पढ़ा कि जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो कुछ प्रॉपर्टीज इससे रिलेट कर रही होती हैं, जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा होता है। इसके अलावा आप लोगों ने शील्डिंग इफेक्ट का पढ़ा कि जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे होते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं तो एटॉमिक साइज भी इवेंचुअली इंक्रीज हो जाता है। इस किस्म की प्रॉपर्टीज जिनका एक ट्रेंड पाया जाता है जो एक कॉन्टिन्यूअस वे में इंक्रीज होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। Periodicity is caused by regular and predictable variations in element atomic structure. ठीक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती हैं और ये प्रिडिक्टेबल होती हैं। प्रिडिक्टेबल क्यों होती हैं? फॉर एग्जांपल, जब आप कहते हैं कि डाउन द ग्रुप आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हर पीरियड में क्या होता है? एक शेल इंक्रीज होता जा रहा है। जब हर पीरियड में एक शेल इंक्रीज होता जा रहा है तो ये अंडरस्टूड सी बात है, हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि हर टॉप से बॉटम जब हम मूव करेंगे तो हर नीचे वाले एलिमेंट में एक शेल ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उसका साइज ज्यादा होगा। आप periodicity को डिस्कस कर चुके हैं। Some of the properties we have discussed in the previous lesson are being shown on the screen. नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप। ये जो एरो है ना, ये शो कर रहा है कि आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं। ओके, आपने देखा नंबर ऑफ शेल्स जो हैं डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस को आप यहाँ पे एटॉमिक साइज से भी रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद आज आपने पढ़ना है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ये आप नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में परेशान। बिफोर गोइंग टू आयनाइजेशन एनर्जी, आप लोगों को शील्डिंग इफेक्ट का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, एंड इस वीडियो को गौर से देखिए ताकि आपको आयनाइजेशन एनर्जी समझने में आसानी हो। Moving down group 1 of the periodic table, atomic radius increases by 1 electron shell. Lithium has 2 electron shells, sodium has 3 electron shells, potassium has 4 electron shells. We know that these alkali metals can lose their lone electron in their valence or outermost shell to form an ion with a positive 1 charge. In fact, this is what happens when an alkali metal reacts with water. The ease of formation of the ion is directly proportional to the ease of losing that electron. Moving down the group, the outer shell electron becomes further from the nucleus. This decreases its attraction. Shielding is defined as the decreased electrostatic attraction between the nucleus and the outermost electrons due to the presence of additional electron shells. Shielding increases. This again decreases the attraction for the outer shell electron. Although nuclear charge increases, the atomic radius and shielding, as mentioned, outweigh this increase. So moving down the group, it is easier to lose the outer shell electron. We can think of the nucleus like a magnet. A magnet is able to hold onto an iron nail. Wrap the magnet with a sheet of cloth and it would not hold onto that nail as effectively. Wrap it with another sheet of cloth and it would be even harder for it to hold on to that nail. The same idea applies to the alkali metals. If there are more electron shells present between the nucleus and the valence electron, the attractive force of the nucleus to that electron will be weaker. So the greater the shielding, the easier it is to lose an electron to form an ion. The term ionization energy is used to describe the amount of energy required to remove an outermost electron from an atom.
Increased shielding means that ionization energy is decreased. The same trend is observed moving down any group in the periodic table. Let's take the halogens as an example. Reactivity decreases moving down the halogens. Halogens each have 7 valence electrons and therefore accept an electron to form a complete octet and a negatively charged ion. So the nucleus of a given halogen would need to attract that electron. The energy released when an electron is added to a neutral species to form a negative ion is known as the electron affinity. This determines the affinity of a species for attracting electrons. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया है। आपका जो टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट का वो इस वीडियो में रिवाइज हो गया है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको आज के टॉपिक के बारे में भी इस वीडियो में मिल गया है। आज का टॉपिक है आपका आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, सो we will discuss ionization energy. Before that, I am repeating the definition of shielding effect. क्या होती है shielding effect? Shielding effect is reduction of force of attraction between nucleus and outermost electron due to inner electrons or due to inner shells. न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर वाला या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता जाएगा उतनी ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पे कम होती जाएगी। ठीक है, क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स दरमियान में इंक्रीज होते जाएंगे और नंबर ऑफ शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते जाएंगे और यही रीजन है कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसके ऊपर कम हो जाएगी और ये जो अट्रैक्शन की कमी होती है इसको आप क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये शील्डिंग इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है और वो कैसे रिलेटेड है आप अभी इसको जान लेंगे। So question arise here, what is ionization energy? The amount of energy required to remove an electron from outermost valence shell is called ionization energy. Ionization जो बेटा वर्ड है इसका सिंपली मतलब होता है आयन फॉर्मेशन। Ionization stands for आयन फॉर्मेशन। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एक आयन बनने के लिए जितनी हमारे पास एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। और आयन कैसे बनते हैं? जब आप एक न्यूट्रल एटम में से या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो वो आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप एक न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा देंगे तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा और अगर आप एक न्यूट्रल एटम में बाहर से इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करा देंगे तो वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी रिलेटेड होती है पॉजिटिव आयन से यानी कि कैटायन से। और पॉजिटिव आयन कब बनता है? जब आप एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा देते हैं। ठीक है, अब एक एटम न्यूट्रल है, उसमें से खामखा में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन energy. In simpler words, we can say the amount of energy required to remove an electron from outermost shell is called ionization energy. First ionization energy needed to remove the first electron from an atom is called first ionization energy. Simply आप first electron remove कराएंगे ना, उसके लिए जो energy required होगी उसको आप first ionization energy कहेंगे। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आप उसको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। सो आप देखें आयनाइजेशन एनर्जी की एक डेमोन्स्ट्रेशन है आपके सामने। ये जो सर्कल है ये क्या है? एक न्यूट्रल एटम है। ठीक है, इस न्यूट्रल एटम के जब आपने आयनाइजेशन एनर्जी दी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और इस न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ये होता है फंक्शन आयनाइजेशन एनर्जी का। अब आप इस वीडियो में आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में मजीद जान लेंगे, फिर हम बात करते हैं इसके ट्रेंड्स की।
Ionization energy is the energy required to remove an electron from an atom or ion. It measures how strongly an atom holds its electrons. The first ionization energy, I1, is the energy required to remove an electron from a neutral atom. Considerably more energy is required to remove a second electron from the positive ion. This energy is called the second ionization energy, I2. As each electron is removed by ionization, the remaining electrons experience less electron-electron repulsion and a greater effective nuclear charge. Thus, each successive ionization requires more energy. This graph shows the way in which the ionization energies of the aluminum atom increase as successive electrons are removed. Notice that the ionization energy increases with each successive removal of an electron. However, there is an especially large jump in the energy required for removal of the fourth electron. From a knowledge of the electron configuration of neutral aluminum, can you account for this dramatic jump? Okay students, आयनाइजेशन एनर्जी आई होप अब आपको क्लियर होगा क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए यूज की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी हो सकती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, फोर्थ भी। जितने इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करने हैं तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी भी उस लिहाज से डिफरेंट होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज की। ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन जी, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक ग्राफ आया है। आप इस ग्राफ से क्या अंदाजा लगा रहे हैं? ओके बेटा, यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये पीरियड नंबर 3 से सारे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें ये जो रेड लाइन है, जो इनका ग्राफ है, जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये पॉइंट्स आप देखें कॉन्टिन्यूसली राइट साइड पे मूव कर रहे हैं, तो ये टॉप पे जा रहे हैं। इट मींस कि आप एक पीरियड के अंदर मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब ये क्यों इंक्रीज करती है ये आपने स्टडी करना है। अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। अब इसकी क्या रीजन है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन भी बनाना है, व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे आ गया। इलेक्ट्रॉन आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू न्यूक्लियस ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीजिंग द एनर्जी नेसेसरी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। कि जब आप एक पीरियड में मूव करते हैं ना, तो कल आपने स्टडी किया था कि जब आप एक पीरियड में मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है। शेल्स तो कांस्टेंट रहते हैं ना। अब ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो इन सारों के अंदर टोटल 3 शेल्स हैं, सारे एलिमेंट्स में 3 शेल्स होंगे। लेकिन जब हम राइट साइड पे मूव करते जाएंगे तो हर एलिमेंट के अंदर उसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, मींस उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर पॉजिटिव चार्जेस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। यही रीजन होती है कि जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं तो क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो न्यूक्लियर की अट्रैक्शन भी इलेक्ट्रॉन्स पे कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही होती है। जब न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा, ठीक है। और जब उस इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना पड़ेगा तो हमें कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जल्दी जल्दी से इसको सम अप कर देते हैं। क्या कहा मैंने, अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहेगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ती जाएगी, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस वाज अबाउट ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। अब हमने ट्रेंड की बात करनी है ग्रुप में।
अगेन आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट आ गया, एक ग्राफ आ रहा है। ये ग्राफ क्या चीज शो कर रहा है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। दिस इज शोइंग सेकेंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। अब आप देखें कि आप जो है बेरिलियम सबसे टॉप में आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम एंड फिर बेरियम। अब आप देखिए, आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, तो ये जो रेड ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। टॉप टू बॉटम आप ग्रुप में मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसकी क्या रीजन है? कि इलेक्ट्रॉन आप जो है डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये इसकी डायग्राम बनाती हूँ कि बेटा आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे ना। अब ये सेकेंड ग्रुप की बात कर रहे हैं। बेरिलियम के अंदर 2 शेल्स होते हैं, ठीक है, और जो है मैग्नीशियम है उसके अंदर 3 शेल्स है, 1 2 एंड 3 शेल्स है। मैं इनकी बात कर रही हूँ, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। इसके बाद कैल्शियम की बात करते हैं। ये दरमियान में न्यूक्लियस है, 1 2 3 4। डाउन द ग्रुप आप मूव करते हैं तो क्या होते हैं? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। आप देखें, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कराना है ना। अब आपको यहाँ से देख के अंदाजा क्या हो रहा है कि ये सबसे पहले वाले को देखें, बेरिलियम को, इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इसके ऊपर ज्यादा हो गई और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जब आप मैग्नीशियम की बात करते हैं तो आप देखें कि इसका इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में आ गया, थोड़ा सा दूर हो गया। इसके बाद आप कैल्शियम की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन और ज्यादा फार्दर हो गया, और ज्यादा न्यूक्लियस से दूर हो गया, तो इसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो गई है। अब आप इन स्ट्रक्चर्स को देख के बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन हम इजीली रिमूव करा सकते हैं। ऑब्वियसली हम कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करा सकते हैं? कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करा सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत ही कम एनर्जी देनी होगी। इट मींस इसके लिए कम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, दरमियान में शील्डिंग इफेक्ट इतना ज्यादा है जिसकी वजह से न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, यही रीजन होती है कि आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका आंसर स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यू टू लेस अट्रैक्शन, लेस एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ओके, ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से बिल्कुल अपोजिट है आयनाइजेशन एनर्जी के। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि जब आपके पास एक एटम होता है ना, फॉर एग्जांपल हमने बात की कि आपके पास एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है, उसके अंदर एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और बाहर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और जब इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा देंगे तो तब ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल कौन सा बन जाएगा? फिर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब बेटा ये जो पॉजिटिव होता है इसको आप क्या कहते हैं? कैटाइन कहते हैं। और ये जो नेगेटिव होता है उसको आप क्या कहते हैं? एनाइन कहते हैं। ठीक है, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसको आप क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो नेगेटिव के लिए रिक्वायर्ड है उसको आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आई होप अब आपको आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा क्लियर होंगे कि आपके पास जब आपने पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको आप क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। और नेगेटिव चार्ज बनाने में जो एनर्जी की चेंजेस होंगी उनको आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यू कैन डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टू, and that is the energy change when an electron is added to a neutral atom to form a negative ion.
एक न्यूट्रल एटम के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी की जो चेंजेस आएंगी आप उनको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू easier to eat an electron and stronger nuclear attraction। मीन्स कि जब हम बात करेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर है, इसका मतलब है कि उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना आसान है और उस एटम के अंदर स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। आप इसकी वीडियो से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। Electron affinity is the amount of energy released when one or more ओके बेटा, यहाँ पे एक और चीज काबिल जिक्र है कि आपने क्या कहा था, आयनाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, चाहिए होती है कि हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, on affinity. Electron affinity is the amount of energy released when one or more electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom. Electron affinity depends on atomic radius, nuclear charge, and electronic configuration of the element. It is expressed in electron volts. Smaller the atom, greater is the electron affinity. The effective attractive force between the nucleus and the valence electron is more for smaller atoms, and they can more firmly hold the extra electrons. Halogens with smaller atomic size have a high electron affinity and readily form anions. Alkaline metals with large atomic radii have low electron affinity and do not form anions. Electron affinity increases with an increase in nuclear charge. Increase in nuclear charge increases the effective attractive force on the valence electrons to hold the additional electron in the valence shell. Fluorine has a greater electron affinity than oxygen because fluorine has 9 positive charge in its nucleus while oxygen has only 8. Electron affinity of elements having completely filled orbitals or less than half filled orbitals is practically zero. In a period, the electron affinity increases from left to right. With an increase in atomic number, the atomic size decreases and electron affinity increases. In a group, the electron affinity decreases on going from top to bottom. On descending a group, the atomic size increases. Hence, electron affinity decreases. Students, this was all about electron affinity। इसके ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में भी स्टडी किया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, वो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी रिलीज होती है जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कराना है, तो इलेक्ट्रॉन जहां पे ज्यादा अच्छे से होल्ड होगा, कौन से एटम्स होंगे, वो ऑब्वियसली वो एटम जिनका साइज छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी और इसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाहर से आने वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होती है। इट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती है। जब आप एक पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम देयर इज अ स्टीप टाइप एरो। ठीक है, ये एरो क्या शो कर रहा है कि आप इस साइड पे मूव करेंगे ना, टॉप साइड पे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी टॉप पे ज्यादा होगी। एंड फ्लोरीन इज द एलिमेंट व्हिच इज द मोस्ट हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देख लें बेटा, इस वीडियो में आपका जो टॉपिक है वो रिवाइज हो जाएगा एंड आई होप आपके सारी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। The number of ionization energies an atom can have is equal to the number of electrons in that atom. The energy required to remove the first electron is called the first ionization energy. In case of sodium, it is 496 kilojoules per mole.
energy that is required to remove a second electron is called the second ionization energy. After the removal of the first electron, the atom gains a unit positive charge. The nuclear charge on the remaining electrons increases. Therefore, the removal of second electron requires a larger energy compared to the first one. In case of sodium, it is 4,563 kilojoules per mole. The sodium ion then acquires a positive charge of +2. Ionization energy generally decreases from top to bottom in a group and increases from left to right in a period. Electron affinity is the energy change taking place when an electron is added to an isolated gaseous atom. First, electron affinity is the energy released when an electron is added to an atom. In case of oxygen, it is -142 kilojoules per mole. When one more electron is added to the ion, we measure second electron affinity. In case of oxygen, it is +710 kilojoules per mole. Electron affinity decreases from top to bottom. In a group and increases from left to right in a period. Have a look at the values to understand it in a better way. Okay students, this was all about today's lesson. I hope you all have understood the periodic properties such as electron affinity and ionization energies. होमवर्क आपने क्या करना है, अपनी बुक से सेल्फ असेसमेंट 3.6 and 3.7 को अटेम्प्ट करना है, so that you may be able to understand how these properties can be applied on different questions. Thank you so much. See you in the next lesson. Allah Hafiz.